نکاح ہو گیا تھا، شہریار نے کس دل سے سائن کیے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ نور اور عمیر بہت خوش تھے۔ کھانا وغیرہ کھا لینے کے بعد اب فرحان صاحب نے رخصتی کا کہا۔ بھائی صاحب تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ نجمہ بیگم فرحان صاحب کی بات سن کر بولی۔ نجمہ ہمیں واپس جانا ہے اور تم جانتی ہو واپس جانے میں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، نجمہ بیگم کہتی ہوں عبیرہ کے کمرے میں آ گئیں۔ میری بچی رخصتی کا وقت ہو چکا ہے، میں اس وقت تجھے بس اتنا سا کہوں گی، ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پیار کرنا اور اپنے شوہر کی ہر بات ماننا۔ نجمہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ رو دی۔ آپ بھی وعدہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں گی اور کھانا وقت پر کھائیں گی، اور ہاں دوائی لینا مت بھولیے گا۔ عبیرہ انہیں چپ کرواتے ہوئے بولی۔ امی کافی دیر ہو گئی ہے، ماموں نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ چلو عبیرہ۔ موہد اس کے پاس آیا۔ فری نے اس کے چہرے پر چادر ڈال دی اور اسے کندھوں سے تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہی تھی کہ وہ روئے نہ۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رو دی تو نجمہ بیگم بھی رو دیں گی اور اس سے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کے سائے میں اسے رخصت کیا گیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ پھوٹ کر رو دی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر شہریار بیٹھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر نور اور عمیر بیٹھے۔ پچھلی سیٹ پر عبیرہ کے ساتھ شہریار کی بہن علینا اپنے بیٹے ہادی کو لیے بیٹھی تھی۔ شہریار نے گاڑی چلا دی، باقی گاڑیاں ابھی پیچھے تھیں۔ نور اور عمیر تو گاڑی میں ہی سو گئے۔ 5 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ شہریار گاڑی پارک کر کے بچوں کو اٹھائے انہیں ان کے کمرے میں لے گیا۔ چلو عبیرہ باہر آ جاؤ۔ علینا نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آئی۔ علینا اسے لیے شہریار کے کمرے میں آئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ہادی کو سلا کر آتی ہوں۔ عبیرہ اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس پلٹ گئی۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی کمرے کو دیکھنے لگی۔ سامنے بہت خوبصورت بیڈ تھا، دیوار پر بہت خوبصورت عمیر، نور اور شہریار کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے اس طرف آئی، اپنے پاؤں کو ہیل سے آزاد کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے یوں بڑی بڑی ہیلز پہننے کی عادت نہیں تھی۔ اتنے لمبے سفر کے بعد وہ نہایت تھکی ہوئی تھی تو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ علینا بچے عبیرہ کو کمرے میں چھوڑ آئی۔ فرحان صاحب نے پوچھا۔ جی بابا، میں نے بٹھا دیا، وہ ہادی بہت تنگ کر رہا تھا اس لیے میں اسے سلانے آ گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ علینا ان کے پاس آ کر بولی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں۔ آؤ۔ فرحان صاحب اسے لیے صوفے پر آن بیٹھے۔ بابا ایک بات پوچھوں، آپ نے اتنی جلدی میں بھائی کی شادی کیوں کی، وہ بھی عبیرہ سے؟ بابا وہ گاؤں کی لڑکی ہے، وہ کیسے اس گھر کو سنبھال سکے گی؟ علینا نے اپنے دل میں چھپے سوال پوچھے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سوال بہت تنگ کر رہے ہوں گے، پر اگر میں یہ فیصلہ آج نہ لیتا تو کل کو شہریار خود کسی نہ کسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لے آتا۔ میرے ذہن میں جب شہریار کی شادی کا خیال آیا تو صرف عبیرہ ہی اس قابل لگی۔ وہی ہے جو اس کے بچوں کو اپنے بچے بنا کر رکھے گی، اور وہی ایک لڑکی ہے جو تمہارے بھائی کو سیدھا کر دے گی۔ یہ تم لکھوا لو۔ فرحان صاحب مسکرا کر بولے۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ کا اندازہ کتنی حدوں تک درست ہوتا ہے۔ علینا بھی مسکرا دی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ شہریار 2 گھنٹے کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی سوئی ہوئی عبیرہ پر پڑی۔ وہ غصے سے اس کی طرف آیا۔ اٹھو۔ شہریار نے اسے اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، کیا ہوا؟ عبیرہ ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میرے بیڈ سے نیچے اترو۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ سے اتارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ وہ اس کا بازو زور سے دباتے ہوئے بولا۔ وہ علینا آپ ہی نے بولا تھا، عبیرہ آہستہ آواز میں بولی۔ خبردار جو آج کے بعد تم میرے بیڈ پر سوئی۔ وہ رہا صوفہ، اس پر سو۔ اس نے عبیرہ کو صوفے کی طرف دھکا دی اور خود ڈراور سے سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ اپنی اتنی تذلیل پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ ایک دم پلٹ کر اس کے قریب آئی۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو اس کمرے پر، اس بیڈ پر میرا پورا حق بنتا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میری اتنی بے عزتی کرنے کا۔ وہ ایک دم پلٹ کر غصے سے بولی۔ نکاح؟ تم زیادہ خوش فہمی میں مت رہو۔ میں نے یہ نکاح صرف اور صرف پاپا کے دباؤ کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ تم جیسی گاؤں کی گنوار کو تو میں منہ بھی نہ لگاؤں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں۔ میں کوئی آپ سے شادی کرنے کے لیے مری نہیں جا رہی تھی، اور ویسے بھی اگر میں آپ کو اتنی ناپسند تھی تو انکار کیوں نہیں کیا؟
अबीरा का उसकी बात सुनकर पारा हाई हुआ। मेरी छोड़ो, तुमने इनकार क्यों नहीं किया? मुझे पता था तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की सोच कैसी होती है। तुमने भी सोचा होगा कि इतना अमीर पैसे वाला बंदा है, इससे शादी कर लेती हूँ, सारी जिंदगी ऐश करूंगी। वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोला, हाँ तो आपको सिर्फ अमेरिका वाली लड़कियां अच्छी लगती होंगी ना, जो 5 साल बाद भी छोड़कर चली जाती हैं। अबीरा ने भी तंजिया अंदाज में जवाब दिया, शट अप, खबरदार अगर तुमने एक भी लफ्ज बोला और तो। वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए धाड़ा। आधे से ज्यादा बाल शहरयार के हाथ में आ गए। आह छोड़े मुझे प्लीज, वो चिल्लाई। जब इतने से भी उसका दिल ना भरा तो हाथ में पड़ा सिगरेट उसकी मेहंदी से भरी हथेली पर रख दिया। आह शहरयार छोड़े मुझे, वो अपनी हथेली छुड़वाने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही थी। खबरदार आज के बाद जो तुमने मुझसे बहस की या मुझे कोई ताना भी दिया तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। शहरयार ने उसे सोफे की तरफ फेंका। अबीरा ने अपने आप को संभाला वरना वो जमीन पर गिरने वाली थी। जाहिल गंवार, वो सिगरेट को जमीन पर फेंकता, उस पर पाँव से उसे मसलता हुआ गुस्से से कहता वॉशरूम में घुस गया। आह या अल्लाह, ये तो पागल वहशी इंसान है। अबीरा ने रोते हुए अपनी हथेली को देखा। आधे घंटे बाद वो वॉशरूम से निकला तो वो वैसे ही बैठी हुई थी, हथेली को देख रही थी और रो रही थी। तुम जैसी लड़कियों के पास ये आंसुओं के ही तो हथियार होते हैं। वो कोई और मर्द होते होंगे जो इन आंसुओं पे मरते हैं। मेरे नज़दीक ना तो तुम कोई अहमियत रखती हो ना तुम्हारे ये 2 कौड़ी के आंसू। मुझे सोना है, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। वो तौलिए को सोफे पर फेंकता, लाइट्स ऑफ करता, लैंप ऑन करके सो गया। अबीरा वैसे ही बैठी रही। उसे शिद्दत से अपनी तजलील पर रोना आ रहा था। उसने कभी ऐसी बेरंग जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था। वो आंखें बंद करके सोफे पर लेट गई। रोते रोते उसकी आंख लग गई। शहरयार कब का सो चुका था। 4 बजे के करीब उसकी आंख खुल गई। बाहर से अजानों की आवाज़ आ रही थी। कुछ पल के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है। फिर एकदम उसे रात का सारा वाकया याद आया। सोफे से उठी और अपने बैग की तरफ बढ़ी। उसमें से रेड कलर का फ्रॉक निकाला और वॉशरूम में चली गई। नहाकर कपड़े तब्दील किए वो कमरे में वापस आई और अपने रात वाले कपड़ों को तय करके सामने बनी कबर्ड में रख दिया। उसने वजू किया हुआ था। कबर्ड के एक खाने में जाए नमाज पड़ा हुआ था। उसे ज़मीन पर बिछाकर वो नमाज पढ़ने लगी। सलाम फेर कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। पहली नज़र उसकी जली हुई हथेली पर पड़ी। खामोश सी अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। फिर दिल में बोली, या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तो मुझ पर रहम कर, मुझे हिम्मत देना, मैं अपनी इस नई ज़िंदगी को सह पाऊँ। या अल्लाह, निकाह के बोलों में तो बहुत ताकत होती है, वो 2 अजनबियों के दिलों को एक कर देता है। या अल्लाह, तो हम दोनों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए बेपुनाह मोहब्बत पैदा कर दे। वो दुआ मांग रही थी पर उसकी आंखों से आंसू रवां हो रहे थे, जो उसके चेहरे के साथ उसकी चादर को भी भिगो रहे थे। काफ़ी देर वो अल्लाह से बातें करती रही। फिर जाए नमाज को तय करके कबर्ड में रख दिया। अब उसे नींद तो आने से रही। वो उठी, कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। वो चलते हुए बाहर गार्डन में आई और वॉक करने लगी। वाह दुल्हन साहिबा, आप तो बहुत जल्दी उठ गईं। वैसे हैरानगी नहीं है, गांव में तो लोग बहुत जल्द उठ जाते हैं। फाखरा बेगम शुमाइला के साथ हाथों में खाने के बॉल लिए घर के दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए बोली। साथ में 2 और नौकर थे जिनके हाथों में भी खाना था। अस्सलामुअलैकुम मामी, अबीरा ने फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, तेरी माँ तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, कितना लंबा हाथ मारा। हमारा इतना पढ़ा लिखा फैक्ट्रियाँ संभालने वाला गबरू जवान बच्चा तुम्हारे जैसी अनपढ़ और निकम्मी के साथ जोड़ दिया। उनके लहजे में वाज़े नफ़रत महसूस की जा सकती थी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अच्छा छोड़ें इन बातों को, अंदर चलते हैं, अबीरा मुस्कुराते हुए बोली। उसे ये बातें हैरान कुन नहीं लगी थी। वो फाखरा बेगम की आदत को जानती थी। हमें तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मेरे ताया जान का घर है। बड़ी आई। शुमाइला नाक चढ़ाकर फाखरा बेगम के साथ अंदर आ गई। हद हो गई है, अबीरा कहती हुई उन दोनों के पीछे अंदर आ गई। अलीना और फरहान साहब भी उठ चुके थे। भाई साहब, मैंने सोचा आज दुल्हन की पहली सुबह है तो क्यों ना नाश्ता लेकर जाऊं। इसकी माँ तो लाने से रही। वो सारे खाने के बॉल डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, इतना लंबा सफ़र तय करके मेरी बहन सिर्फ नाश्ता लेकर क्यों आए? फरहान साहब ने भी जवाब दिया, उमैर और नूर नहीं उठे, मैं उठा कर लाती हूँ। शुमाइला फिर तेज़ी से कहती सामने बने कमरे में चली गई। अबीरा, तुम शहरयार को उठा दो। फरहान साहब ने अबीरा से कहा तो अबीरा हाँ में गर्दन हिलाती ऊपर कमरे की तरफ चली गई।
शुमाइला ने बच्चों को उठाया। नूर नई मामा से मिलने चलें? कल भी नहीं मिल पाए, उमैर एक्साइटमेंट में बोला। हाँ चलो। नूर बेड से नीचे उतरने लगी, तब शुमाइला ने रोका। वो तुम्हारी असली मामा नहीं है, वो तुम्हारी सौतेली मामा है, और जो सौतेली मामा होती हैं ना, वो बहुत मारती हैं। तुम दोनों उसके पास बिल्कुल मत जाना, और अगर वो बात करना चाहे तो आगे से बदतमीजी करना या जवाब ही ना देना, वरना वो तुम्हारे पापा को भी लेकर चली जाएंगी। शुमाइला मासूम बच्चों के दिलों में नफरत डालने लगी। पर दादा जान ने तो कहा था वो बहुत अच्छी हैं। उमैर सारी बातें सुनकर परेशान सा हो गया। बिल्कुल नहीं, वो बहुत गंदी है, एकदम चुड़ैल है, जिसने तुम्हारे बाबा को छीन लिया है तुमसे। शुमाइला फौरन बोली। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नूर और उमैर दोनों इकट्ठे बोले। चलो अभी तुम दोनों ब्रश करके नीचे चलो, नाश्ता करते हैं। शुमाइला ने उन्हें बेड से नीचे उतारा और वो दोनों काफ़ी सहम गए थे। उसने उन्हें वॉशरूम में भेजा। अब मज़ा आएगा अबीरा, वो कहकहा लगाते हुए बोली। अबीरा कमरे में आई तब तक शहरयार उठ चुका था और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। शहरयार, वो आई एम सॉरी, मुझे रात को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। अबीरा उसके करीब ड्रेसिंग टेबल के पास आकर बोली। आइंदा अपनी ज़ुबान मेरे सामने खोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना, वरना मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा। वो ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंकते हुए बोला। बेड से कोट पकड़कर पहनते हुए वो कमरे से बाहर निकला। पता नहीं इतनी अकड़ किस नाम की है। मैंने भी फजूल में माफ़ी मांग ली, हालांकि माफ़ी तो इसको मांगनी चाहिए थी। वो मुंह में बुड़बुड़ाई और उसके पीछे ही नीचे चली आई। माशाअल्लाह, आओ बच्चों नाश्ता करते हैं। फरहान साहब ने दोनों को एक साथ आते देखा तो बोले। नूर और उमैर चुप करके बैठे नाश्ता कर रहे थे। बाकी सब भी बैठ गए। मैं सोच रहा हूँ कल वलीमा कर लेते हैं, क्या कहते हो शहरयार? फरहान साहब नाश्ता करते हुए शहरयार से मुखातिब हुए। बाबा अभी ये वलीमा ना करें, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। दुबई वाले क्लाइंट से आज मेरी मीटिंग है। अगर आज प्रोजेक्ट साइन हो गया तो 2 महीने के लिए मैं बहुत मसरूफ़ हो जाऊँगा, तो प्लीज़ आप ये सब रहने दें, बाद में कर लीजिएगा। वो चाय पीते हुए बोला। बेटे वलीमा बहुत ज़रूरी है। फरहान साहब ने उसे मनाना चाहा। अबीरा ने उसकी तरफ देखा। बाबा आपकी एक बात मैंने मानी तो प्लीज़ अब आप भी मेरी बात मान लें। वो कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ बढ़ा। ठीक है। फरहान साहब ने बात बढ़ाना मुनासिब ना समझा। पापा मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा, वो मेरी सास की तबीयत कुछ ख़राब है तो जमील बोल रहे हैं वापस आ जाओ। अलीना शहरयार के जाने के बाद बोली। ठीक है, मैं छोड़ आऊँगा और तुम्हारी सास की तबीयत भी मालूम कर लूँगा। आई एम सॉरी अबीरा, तुम्हें आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और मैं वापस जा रही हूँ, पर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अलीना अबीरा के गले मिलते हुए बोली। कोई बात नहीं, आपको जब भी मौका मिले आप आ जाना। अबीरा मुस्कुराते हुए बोली। ये उमैर और नूर कहाँ हैं? शायद सो गए। चलो कोई बात नहीं, चलें बाबा। अलीना हादी को गोद में लेते हुए बोली। अबीरा बेटी, मैं अलीना को छोड़ कर आता हूँ, तुम तब तक बच्चों को देख लो। फरहान साहब ये कहकर अलीना के साथ बाहर चले गए। जी मामू, वो कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। फरहान साहब अलीना को छोड़ने चले गए। अबीरा किचन में आई, 2 ग्लास मिल्क शेक के रखे और उमैर और नूर के कमरे में चली आई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप दोनों? आपसे तारुफ नहीं हुआ था तो मैंने सोचा ज़रा आप दोनों से मिलकर आऊँ। वो मुस्कुराकर उनके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। उसने ग्लास साइड टेबल पर रखे। वो दोनों बेड पर बैठे टैबलेट पर कोई गेम खेल रहे थे। उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अबीरा उनके करीब बैठते हुए बोली। उठो, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप गंदी हो। उमैर बेड से नीचे उतरकर अबीरा को बेड से उठाते हुए बोला। ये क्या बोल रहे हो? वो हैरानगी से बोली। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप हमारी मामा नहीं हो, आप हमारे बाबा को छीनने आई हो। उमैर शुमाइला के लफ्ज़ बोल रहा था। निकलो। दोनों ने उसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। अबीरा हैरान परेशान सी उन बच्चों के लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। वो दोनों अंदर ही बैठे रहे। अबीरा टीवी लाउंज में अकेली बैठी रही। जब बैठे बैठे वो थक गई तो उठकर अपने कमरे में आई और कबर्ड में अपने कपड़े सेट करने लगी। अबीरा बीबी, मैंने खाना बना दिया है, मुझे अभी इजाज़त दें, आज मुझे घर जल्दी जाना है। फ़ाइज़ा खाला अबीरा के कमरे में आकर बोली। आप मुझे अबीरा बोलें, आप मुझसे इतनी बड़ी हैं। बीबी कहना आपका मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, आप मुझे काफ़ी परेशान दिख रही हैं, खैर तो है? अबीरा कबर्ड का दरवाज़ा बंद करके उनकी तरफ देखते हुए बोली। वो असल में मुझे अपनी बेटी को हस्पताल लेकर जाना है। वो 1 महीने से बीमार है, उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बहुत परेशान दिख रही थी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये कुछ पैसे रख लें और किसी अच्छे अस्पताल से उसका इलाज करवाएं और कुछ दिन घर पर रहें, अपनी बेटी का ध्यान रखें। अबीरा जल्दी से कुछ 1000 के नोट निकाल फ़ाइज़ा खाला के हाथ में रख कर बोली। नहीं बेटी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ?
और छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अभी कल ही तो शादी करके इस घर में आई हो। फायजा खाला पैसे वापस करते हुए बोली। खाला आप ये रखें, बच्चों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और ये घर तो मेरा ही है ना, आप इसकी टेंशन मत लें, मैं संभाल लूँगी। अबीरा मुस्कुराते हुए उन्हें दोबारा पैसे देने लगी। वो उसे प्यार देकर चली गई। अबीरा वापस कबर्ड में कुछ ढूंढने लगी। रात 8 बजे के करीब फरहान साहब और शहरयार दोनों इकट्ठे ही घर आए। अबीरा ने खाना लगाया। खाने के बाद वो सब चाय पीने लाउंज में जा बैठे। नूर इधर आओ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। फरहान साहब ने चॉकलेट का डब्बा उसको दिखाते हुए कहा। दादाजी थैंक यू सो मच। वो खिलखिला कर हंसी। मुझे पता था मेरी बेटी इससे खुश हो जाएगी। चलो नूर उमैर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। शहरयार मोबाइल चलाते हुए बोला। ओके बाबा। दोनों मुंह बनाकर चले गए। बाबा मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ, शहरयार कहता हुआ कमरे में आ गया। वो सीधा कबर्ड की तरफ गया। जैसे ही उसने खोला, सामने एक तरफ अपने और दूसरी तरफ अबीरा के कपड़े रखे हुए देखे। वाह, मेरे कमरे पर हक जता रही हैं मैडम। उसने अबीरा के सारे कपड़े कबर्ड से बाहर निकाले और सोफे पर फेंक दिए और अपना सूट पकड़कर वॉशरूम की तरफ चला गया। अबीरा जब कमरे में दाखिल हुई तो अपने 2 घंटे की मेहनत को इस तरह से बेमोल होते देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। शहरयार अपना काम करके अब सुकून से सामने बेड पर फाइल्स फैलाकर बैठा हुआ था। वो अपने गुस्से को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए सोफे की तरफ बढ़ी और दोबारा से कपड़ों को हैंगर में डालने लगी। वो दोबारा से कबर्ड का दरवाज़ा खोलकर कपड़े अंदर रखने लगी। शहरयार गुस्से से अपना पेन ज़मीन पर मारकर उठा और उसके करीब आया। मुझे ना तो अपनी ज़िंदगी में और ना ही अपनी कबर्ड में फालतू चीज़ें पसंद है, वो उसके करीब होकर बोला और दोबारा उसके कपड़े निकालकर सोफे पर फेंकने लगा। अबीरा को अपनी इतनी इंसल्ट पर रोना सा आ गया। उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। तो मैं ये सब कहाँ रखूँ? उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अपने सस्ते से कपड़े जहाँ चाहे मर्जी रखो, पर ये मेरी कबर्ड है, ये गंद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तुम खुद भी इस सस्ते कपड़ों जैसी हो। पता नहीं बाबा ने क्या सोचकर तुम जैसी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया, जिसे ना तो फैशन की अकल है और ना बोलने की। अबीरा को उसके लहजे में अपने लिए नफरत ही नफरत महसूस हुई। वो वापस बेड पर बैठ गया। अबीरा काफ़ी देर चुप रही। मुझे कभी ये नहीं सिखाया गया महंगे कपड़े पहनोगी तो ही खूबसूरत दिखोगी। मुझे बस इतना सिखाया गया है कि खूबसूरती इंसान के अंदर होती है, उसकी सीरत की होती है। ये महंगे कपड़े और मेकअप तो सिर्फ आपकी अंदरूनी असलियत को छुपाने के काम आते हैं। मुझे अफसोस हुआ आपकी सोच पर। आप ये गलतफहमी दिल से निकाल दें कि मुझे आपके पैसे में 1% भी इंटरेस्ट है। वो दुख भरे लहजे में कहती हुई अपने कपड़े दोबारा बैग में रखते हुए बोली। शहरयार एक पल को चुप हो गया। अबीरा उसके बाद कुछ ना बोली, बस अपना बैग साइड पर रखकर सोफे पर लेट गई और आंखें मूंद लीं। शहरयार ने एक पल में उसकी तरफ देखा और आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी नज़र से वो एक आंसू छुपा ना रह सका जो अबीरा की आंख से बहा। उसने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया। मामा, मैंने महसूस किया है शहरयार उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ ताया जी के जोर शादी हो गई। शुमाइला फाखरा बेगम के साथ बैठी हुई थी। तुझे भी बोला था कि उसके बच्चों पर थोड़ी सी तवज्जो दे ले। फरहान भाई की नज़र तुम पर ठहर जाती, पर नहीं, तुम्हें तो अपने ऊट पटंगे दोस्तों के साथ पार्टियां करने से ही फुर्सत नहीं मिली, तो भला इन बच्चों से कहाँ अटैच होती या खुद को कहाँ इनसे अटैच करती। आज अगर तुम शहरयार की बीवी होती तो सारी ज़िंदगी इस घर पर राज करती। फाखरा बेगम उसे डांटते हुए बोली। तो मामा, अब भी मैं ये कर सकती हूँ, आप बस देखती जाओ कैसे मैं इस अबीरा का पत्ता साफ करती हूँ और अपना टांका फिट करती हूँ। इनफैक्ट कल मैं अपनी चाल की पहली कील ठोंक भी आई हूँ। वो फखरिया अंदाज में बोली और कल की बात बताने लगी। अरे वाह, वैसे ये बच्चे हमारे बहुत काम आ सकते हैं। फाखरा बेगम हंसते हुए बोली। हाँ, बस देखो आगे मैं करती क्या क्या हूँ, और देखिएगा बहुत जल्द उसको इस घर से बाहर फेंक दूंगी। फ़िलहाल मुझे ऑफिस जाना है ताकि मैं उसके करीब रह सकूं। फाखरा कहते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकली। उसने इंटर्नशिप का बहाना बनाकर शहरयार के ऑफिस में जगह बनाई थी। वो हमेशा की तरह सुबह टाइम से उठ गई। नमाज पढ़कर वो नीचे आई और बाहर लॉन में वॉक करने लगी। शहरयार तैयार होकर जॉगिंग के लिए चला गया। अबीरा किचन में आई और सबके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। तब तक फरहान साहब उठ गए। अबीरा बेटी, तुम किचन में क्या कर रही हो? खान साहब ने उसे यूं सुबह सुबह किचन में देखा तो अंदर आकर बोले। मामू, मैं नाश्ता बना रही हूँ।
वो जूस को गिलासों में डालते हुए बोली, फाइजा बीबी कहाँ है बेटी? अभी तो तुम्हारी शादी को 2 दिन नहीं हुए और तुम यूं किचन में घुसी हुई हो। चलो बाहर। फरहान साहब ने उसे डांटा। मामू, एक तरफ आप मुझे बेटी कहते हैं और दूसरी तरफ काम भी नहीं करने देते। ये अब मेरा घर है और अपने घर में काम तो करते हैं ना। और फाइजा खाला को मैंने कुछ दिनों की छुट्टी दे दिया, उनकी बेटी की तबीयत कुछ ख़राब थी। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोली, ठीक है, चलो मैं नूर और उमैर को उठा देता हूँ। फरहान साहब उसकी बात मानते हुए बाहर आ गए। शहरयार तैयार होकर नीचे आया। नूर अपने वॉशरूम में खुद ब्रश करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाबा मेरे बाल बना दो। नूर कंघी लेते हुए अपने बाबा के पास आई। वो बहुत मुश्किल से उसे ब्रश करने लगा। पहले ये सब फाइजा खाला करती थी तो किसी को महसूस नहीं होता था। ओह बाबा, मुझे दर्द हो रहा है, नूर रोते हुए बोली। अबीरा सारा नाश्ता टेबल पर लगाकर उन दोनों के पास आई। इधर दे, मैं करती हूँ। अबीरा ने शहरयार के हाथ से ब्रश लिया और नूर को ब्रश करने लगी। इतना मुश्किल काम है, शहरयार कहता हुआ टेबल की तरफ बढ़ा। वाह अबीरा बेटी, पराठे बहुत कमाल के बने हैं, बिल्कुल जैसे बचपन में खाते थे। पता है नजमा, मुझे हमेशा यही वाले पराठे बना कर देती थी। मुझे पता है मामू, आपको ये पराठे बहुत पसंद है। मुझे अम्मी अक्सर बताया करती थी, इसीलिए मैंने कैसे बाबा को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही है। इस स्मॉल टाउन की लड़कियों की यही कोशिश होती है, खाना बनाकर सबको अपना दीवाना बना लो। शहरयार दिल ही दिल में कुढ़ रहा था। बाबा याद है ना, आज आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। आप एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट देख लें, फिर डील फाइनल कर लेंगे। शहरयार चाय पीते हुए बोला। हाँ यार, इसीलिए तो तैयार हुआ हूँ। फरहान साहब बहुत शौक से पराठे खाते हुए वो टीवी लाउंज में बैठी नजमा बेगम से बात करने लगी। हाँ अम्मी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली। और शहरयार, उसका रवैया कैसा है? नजमा बेगम की आवाज़ में वाज़े परेशानी थी। वो तो बहुत अच्छे हैं, पता है मेरा कितना ख्याल रखते हैं। उमैर और नूर भी बहुत प्यारे हैं। अबीरा अपने आंसुओं को बमुश्किल रोकते हुए बोली। चलो अल्लाह का शुक्र है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं इब्राहिम को देख लूँ। नजमा बेगम ने दुआएं देकर फ़ोन बंद कर दिया। अपना दुख अपनी माँ से छुपाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, पर उनकी सेहत के लिए मैं उनसे शहरयार का रवैया शेयर नहीं कर सकती। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। सारा दिन वो बाउली बाउली घर में फिरती रही। 2 बजे के करीब उमैर और नूर घर वापस आए। वो आते ही बिना कुछ बोले कमरे में बंद हो गए। अबीरा ने उनसे बात करनी चाहिए, पर उनके रवैये से वो चुप हो गई। उसे बच्चों के इस तरह के रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है। वो काफ़ी देर तक उनके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी, पर 2 घंटे से कमरे में बंद थे वो। उमैर, नूर, दरवाज़ा खोलो, देखो तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो। वो हाथ में जूस के गिलास लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। आपको समझ नहीं आता, हमें आपसे बात नहीं करनी, चलो जाओ यहाँ से। उमैर उसे धक्का देते हुए बोला। उमैर, तमीज़ से बात करो। अबीरा लड़खड़ाई और जूस के गिलास उससे ज़मीन पर गिर पड़े। उमैर, तमीज़ से बात करो, ये कोई तरीका है बात करने का? अबीरा थोड़े गुस्से से बोली। शुमाइला, आप ही सच बोल रही थी, आप चुड़ैल हो, आप सिर्फ हमारे बाबा को छीनने आई हो। नूर गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोली। तुम दोनों इतने छोटे होकर इतनी बदतमीजी कर रहे हो। अबीरा गुस्से से बोली। शट अप, सच में तुम हमारी सौतेली माँ हो, जो सिर्फ हमें हमारे बाबा से दूर करने आई है। निकलो यहाँ से, हमारे घर से निकलो, निकलो। उमैर और नूर दोनों उसे धक्का देते हुए बोले। बस बहुत हो गया। अबीरा कब से उनकी बातें सुन रही थी। गुस्से में उससे हाथ उठा जो हवा में ही ठहर गया। नूर और उमैर रोने लगे। अबीरा पीछे से किसी की आवाज़ आई। उसने एकदम मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गई। दाखिली दरवाजे में शहरयार और शुमाइला खड़े थे, जो अभी 1 मिनट पहले ही आए थे। उन्होंने अबीरा का उठा हुआ हाथ ही देखा था। शहरयार गुस्से से फाइल फेंकता हुआ उसकी तरफ आया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। शहरयार ने उसे थप्पड़ मारा था। वो अपना बैलेंस बरकरार न रख सकी और ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर पड़े कांच उसके बाजू में चुभ गए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की? शहरयार ने उसे ज़ोर से बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। वो कुछ बोलने ही वाली थी। चुप, खबरदार अगर तुमने आज के बाद मेरे बच्चों पर हाथ उठाया। शहरयार ने उसे एक तरफ धकेला। वो उमैर और नूर को उठाकर ऊपर अपने कमरे में ले आया। बहुत अफसोस हुआ, एक दिन की बीवी को कितनी बेदर्दी से मारा, पर क्या कर सकते हैं, तुम जैसी गांव की गंवार यही डिजर्व करती है। शुमाइला तंजिया अंदाज में कहती हुई घर से बाहर निकल गई। वो जल्द से जल्द ये खबर फाखरा को सुनाना चाहती थी। अबीरा वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई और रोने लगी।